Dr. Deshpande, you have been made the host. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. In today's lecture, we are just going to discuss about the anatomy and the physiology of cardiovascular system. Basically, in the system, there are. Hello. Dr. Deshpande, you need to start recording, please. Okay. Okay, sir. Okay, sir. On the cloud. Yeah. Recording is already going on. Yes, recording is already going on. So. Okay, fine. Okay. 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 So starting with the first, that the anatomical portion. As in this section, we're discussing about the anatomy and the physiology both. So we're trying to summarize the things which are usually words which are going to the day-to-day life activities. I've just made a PPT in detail so that you can just refer this document as an anatomy and the physiological content. We are just going to discuss about the gross features of the anatomy and the physiology related with the heart. In the cardiovascular system, as the name it suggests, the cardia and the vascular system, vessels, that all the vessels which are present in the bodies. So basically, in this lecture, I'm just focusing about the heart, not all the vessels, because when we are discussing about the organs of that particular system, we will discuss about that blood supply of that particular organ also in that session. So the vasculature or the vascular system is not going to discuss in this lecture. We are just focusing about the heart and other structures related with the heart. So starting with the heart, as an anatomical portion, it is just a muscular organ situated in the mediastinum. Basically, mediastinum is the portion related with the chest cavity that starts with the inlet of the chest cavity and ends with the diaphragm. So it is exactly present at the middle of the mediastinum, and it has a covering called as a pericardium. It is just a layer called as a pericardium. They're having two layers. That's the serous and the parietal layer present over there. That is the parietal layer, which is just attached or adherent to the heart. The serous layer, which can be separated. So this is the pouch when you are just opening the heart by taking the incision over the manubrium. After reflecting the manubrium, you can just see the lungs, and normally at the left side we found a heart present at just at the cardiac notch of the lung. Uh, 99% cases it is present in the left side. In some cases, heart might be in the right side also. That is called as a dextrocardiac condition. It is just a condition just related with anatomical changes. Another anatomical changes which is just a 0.1% in the word, that is ectopic cardiac, means it is just situated outside the chest wall. Basically, chest wall or the rib cage is for the protection of the heart and inner structures within the thoracic cage. But in ectopic heart, it is just present outside the thoracic cage, and you can just see all the musculature of the heart passing in the body of the patient only. So this is the general introduction about the heart. Basically, heart, we are using this term in two ways. That might be the cardiac, and which is just come from the Greek name, and another section that is the core, that is the Latin name for the heart. Means we can just that cardiac notch, it's related with the heart. Then coronary coronary angioplasty. So that core word is also related with the heart. So both of these two words are clinically associated with the heart. One is just came from the Greek name, and another is just came from the Latin one. So both of these terminologies used for the heart. Then general features, where it is exactly how it is exactly situated.
just oblique behind the body of the sternum. It's at the chest level, just behind the sternum. So while you're doing the bypass surgery or open heart surgery, you have to just take an incision at the midline of the sternum. Then just reflect the chest wall laterally, and we are operating the heart particularly. Then just adjoining parts of the posterior cartilage means as we see the dimension, it's 12 by 9 centimeters. So it just extend up to the left side up to the 9 centimeter of the mid sternal line. That is called as an apex of the heart. We will discuss it in the latter section. It just lies 1/3 to the right and 2/3 to the left in normal condition. Dimension 12 to 9 is just 300 grams in male and 250 grams in the female. External features, as we know about general structure of the heart, they're having 4 chambers, 2 chambers called as an artery, 2 chambers called as a ventricle. Then they're having sulci or the grooves present over there. That is the interarticular groove. Arterial groove means that groove is present between the 2 arteria. In arterioventricular groove or the coronary sulcus, it is present between the atrium and the ventricle. Then anterior ventricular groove and the posterior ventricular groove is just related with the anterior relation and the posterior relation. Basically, these grooves externally they're having slit-like structure where the coronary arteries are situated, and internally they are the separation between the chambers of the heart, that is atrium and the ventricle. Then apex of the heart, it's formed entirely by the left ventricle. Just go with the figure first. If this is the heart, we can just see this is the aorta. Yes, sir. Okay. So this is the aorta. Sorry, this is the superior vena cava. This is the arch of aorta, and these are the branches of the arch of aorta. This is related with the right atrium. This is right ventricle. Then this is left ventricle, and this is left atrium at the posterior aspect. So in this picture, we can just see that it is a quadrangular structure, somewhat quadrangular structure, but as it lies obliquely, so most of the portion is shifted towards the left side, and this portion is a somewhat angular one. This is called as an apex of the heart. Usually, the apex is what related with the higher portion, and it's mostly at the upper end. But in the heart, the apex is situated at the lower aspect, whereas the base is some broad one. So this portion is called as a base of the heart. This portion upper, basically, it is situated in the portion of the diaphragm. So at the posterior aspect, where the portion, which portion is just lies in the diaphragm, that particular portion is called as the base of the heart. So it is just lies at the posterior segment of this section. But this conical portion is called as an apex of the heart. So the apex of the heart is entirely formed by the left ventricle, directed towards the left. It's just situated in the 5th intercostal space, 9 centimeter lateral to the mid sternal line. So if you are just counting the apex where it is exactly present, you can just palpate the sternum, and from mid sternal line, it is just 9 centimeter away towards the left side, and from the 5th intercostal space. In the body, we can just count the 5th intercostal space through angle of Lewis. If you remember, at the angle of Lewis, they have this attachment of the second rib. So from the second rib, we can just calculate about the spaces between the 2 costa. So in the 5th intercostal space of the 9 centimeter from the mid sternal line, the having the apex of the heart. In this, it is the called as a posterior surface and formed mainly by the left atrium and small part of the right atrium. So you can just go with the figure again. Basically, ये थोड़ा सा obliquely placed होता है, इसलिए कौन सा स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर रहा है ये थोड़ा सा अलग होता है. पिक्चर जो दिखता है उससे थोड़ा सा अलग आता है. यहाँ पे ये obliquely placed है, इसलिए ये apex बन गया. अगर आप बेस के पास जाओ, बेस को कंपेयर करोगे तो बेस is just formed by the left atrium and right atrium. So again, just go with the figure. This is right atrium. Here there is a right ventricle. Here it is a left ventricle, and just posterior to them, the having
another structure called as a left atrium. This is the left atrium which is just present at the posterior aspect. I think जनरल ग्रॉस एनाटॉमी पता होंगे कि ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है. जस्ट जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड द कोरोनरी सर्कस, दैट जस्ट एंटरिंग इन द राइट एट्रियम. सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाता है टू पल्मोनरी ट्रंक, एंड देन लंग्स टू pulmonary veins. It just compares to the left atrium, comes to the left atrium, then left atrium to left ventricle, and then left ventricle to aorta, and through aorta to all over the body. Normal circulation होता है, जो normally सभी इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहता है. इन फेटल इट जस्ट समवॉट चेंज, बिकॉज वहां पे लंग्स डेवलप नहीं होते. जब तक बच्चा बाहर नहीं आता, रोता नहीं, तो वो एक्टिव नहीं होते. तो ऐसे कंडीशन में हैविंग सम डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे वो राइट एट्रियम, आपने ये सुना होगा कि दिल में छेद होता है. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है, वहां से दैट इज कॉल्ड एज एन फोविया. वहां से वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है. मींस राइट एट्रियम से अभी राइट वेंट्रिकल में नहीं आया, वो डायरेक्टली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं आया, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया. राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में चला गया, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया. ये जो प्रोसेस होती है वहां पे जो ये होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट रहता है. जैसा ही बर्थ होगा, वो जो ओपनिंग होती है वो क्लोज्ड हो जाती है. अगर वो क्लोज नहीं हुई, तो जो हम लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जो दिल में छेद होता है, इट इज कॉल्ड एज एन फोविया ओपनिंग. तो वहां पे वो प्रेजेंट मिलेंगी, नॉर्मली वो क्लोज हो जाती है. तो दे हैविंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एन फोविया सेंट्रलिस. तो वो भी आगे राइट एट्रियम में आएगा, वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में आता है. दिस इज द लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट एट द posterior aspect, having 4 openings, that is called as a pulmonary veins. These veins are coming from the lungs. Basically in the pulmonary circulation, lungs is an important structure. जो circulation body में होता है, it is just goes to the blood goes to the lungs, and deoxygenated blood lungs में जाता है, oxygenated होता है, फिर वो बॉडी की तरफ आता है. तो जो बॉडी की तरफ आने के लिए वो हार्ट से ही पास होता है. तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर, दिस इज द बेस. इसके रिलेशंस मैंने दिए हैं कि कौन से पोजीशन में वो कहाँ पे रहता है, हम सोने के बाद वो कहाँ पे रहेंगे, हम जब खड़े रहते हैं तो वो पोजीशन थोड़ी सी वैरी होती है. ये बस डिस्क्रिप्टिव पार्ट है. यहाँ पे जो एक ही जगह पे मटेरियल कंसाइज, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे कंसाइज किया है. देन 4 borders and the surfaces, upper border, inferior border, right border and the left border. जैसे मैंने अभी बताया कि somewhat quadrangular shape में हमें ये मिलेगा, इसलिए उसके 4 borders होंगे, upper one, inferior one. This is the right one and the left one. Right और left, जहाँ राइट एट्रियम है वहाँ पे राइट बॉर्डर, एंड जहाँ पे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल दिखेगा वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस surface is anterior surface. This is the complete anterior surface. In the left and the posterior surface and the inferior surface. Inferior surface means जो posteriorly diaphragmatic में present रहता है, that is the inferior surface. Left, anterior, posterior. This is just similar to the position of the heart. Then each border कहाँ से बनती है, सरफेस कहाँ से बनते हैं, वो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिया है. अगेन जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन, सिर्फ ऑब्लिकली प्लेस्ड है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये करेंगे. एक बार ये क्लियर हो गया तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज नहीं होता. जैसे जहाँ पे अपर बॉर्डर इज स्लाइटली ऑब्लिक एंड फॉर्म बाय द 2 आर्टरी, यू कैन जस्ट कंपेयर अगेन विद द फिगर. यहाँ पे बोला है कि दिस इज द अपर बॉर्डर एंड दिस इज द अपर बॉर्डर इज फॉर्म बाय 2 आर्टरिया, दैट इज लेफ्ट एंड राइट. Right border is more or less vertical, so it is formed by the right atrium. अब यहाँ पे ये obliquely placed है, इसलिए जहाँ पे right border आएंगे तो वहाँ पे most of the time एक ही structure रहता है, that is the right atrium. Means that first border, that the first upper border having 2 atria, in the right border only 1 atrium. Then in the inferior border, अभी inferior border वो obliquely placed है, तो यहाँ पे right atrium आया, वहां पे राइट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा. अब यहाँ पे फिर से देखिए कि दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर बॉर्डर ये आई, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोर्शन रहेगा राइट वेंट्रिकल का. इन लेफ्ट बॉर्डर इज ऑब्लिक एंड कर्व्ड, इट इज मेनली फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल.
अब यहाँ पे ये जो कंप्लीट पोर्शन है लेफ्ट बॉर्डर, ये कंप्लीट पोर्शन फॉर्म होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। सिर्फ क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है थेरोटिकल पोर्शन के हिसाब से आते हैं। In the surfaces, again the anterior surface on the posterior surface, anterior surface it is also called as a sternocostal surface. वो anteriorly present है related with the sternum and the costa, so it is called as a sternocostal surface. Form again कहाँ किस चीज से बन रहा है, तो anteriorly having the anterior right atrium and the right ventricle and partly by the left ventricle. Again diagram में से देख सकते हैं कि यहाँ पे right atrium है, right ventricle है and partly left ventricle है, तो this is complete sternocostal surface. Then most of the sternocostal surface is covered with lungs, and the part related with the lungs. Uncovered area is the dull percussion, clinically referred as the superficial cardiac dullness. जो surface sternocostal का lungs और बाकी structures से ये नहीं रहता, covered नहीं रहता, तो वहाँ पे dullness, cardiac dullness हम cardiac sound भी अच्छे से सुन सकते हैं, तो that uncovered structure is called as cardiac dullness. अगर हम इंफीरियर और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में जाएंगे, जो रेस्ट हो रहा है डायफ्रैगम पे, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम पे, इट इज फॉर्म बाय द टू थर्ड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे हमने बोला कि इंफीरियर बेस होता है, बेस नीचे है, सॉरी अपेक्स नीचे है, जो वहां पे नीचे की तरफ पॉइंट आउट हुआ है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो वो ही यहाँ पे मेन पोर्शन फॉर्म करता है इंफीरियर सरफेस का। एंड लेफ्ट सरफेस इज मोस्टली फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, अगेन कंप्लीटली लेफ्ट साइड में है, तो अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल ही से रिलेटेड आएगा। एट द अपर एंड ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल मींस द कंप्लीट लेफ्ट सरफेस कंपेयर किया, तो दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, और थोड़ा सा लेफ्ट एट्रियम का पोर्शन यहाँ पे अपर साइड में आएगा। तो दिस इज अबाउट द सर्फेसेस। जस्ट क्वाड्रेंगुलर चीज है चेस्ट में उनके आर्टरी, और ये थोड़ा सा ऑब्लिक है, इसलिए वो कंप्लीट 4 चेंबर जैसा नहीं आता, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम पिक्चर्स में ये ड्रॉ करते हैं। अगर ड्रॉ करके देखा क्वाड्रेंगुलर लिखा, तो हमने बहुत बार ऐसे ड्रॉ करके कि तो आर्टरियम ऊपर ले लिया, तो वेंट्रिकल नीचे ले लिया, और वर्टिकली डायग्राम में प्लॉट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बॉर्डर सरफेसेस, एज वी आर जस्ट as the heart is placed somewhat oblique in the body. So this is the heart aorta, superior vena cava, inferior vena cava, and this is the right atrium. Then how we can just see heart from the surface anatomy and views of the surface anatomy, कौन-कौन से structure कहाँ-कहाँ पे मिलेंगे। बेसिकली सरफेस एनाटॉमी बॉडी पे ऊपर से ही हमें काउंट करके देखना पड़ता है कि हार्ट कैसा है। हार्ट की जो साइज जो बताई गई है अप्रोक्स इज 1 क्लोज फिस्ट ऑफ द पर्सन, मींस हर पर्सन की जो हार्ट की साइज होती है वो नॉर्मली 1 फिस्ट के हिसाब से होती है। अगर क्लिनिकल कंडीशन रहे तो हैविंग द हाइपरट्रॉफी ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंबर, आर्टरियल चेंबर और द वेंट्रिकुलर चेंबर, प्रेशर जो होता है वो बियर नहीं कर पाते, इस कारण जो मायोकार्डियल इलास्टिसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, और उस कारण वो प्रेशर के कारण चेंबर की साइज बढ़ जाती है। नहीं तो नॉर्मली 1 फिस्ट हर पर्सन की जो फिस्ट की डायमेंशन होंगी वो हर पर्सन की उतनी ही हार्ट की साइज होती है। तो यहाँ पे अगर हमें ऊपर से कुछ प्लॉट करना है हार्ट के बारे में, तो दीज आर द पॉइंट्स हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू प्लॉट। मींस जैसे बोला कि क्वाड्रेंगुलर है तो ही बॉर्डर हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक अपर बॉर्डर एक लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर स्टार्टिंग विद एट द first point at the left side, second point at the right side, and then at the lower border both related with the same, mean fifth intercostal space and the sixth intercostal space. ये जो है first point यहाँ पे it is related with the apex of the heart, and maximum convexity होती है towards the right, तो वहाँ पे ये convexity draw कर सकते हैं। तो this is just a picture related with the heart. हार्ट हम बॉडी पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर इमेजिनरी हार्ट हमें देखना है कैसे बॉडी पे होगा, तो इट्स जस्ट लुक लाइक दिस वन। स्टर्नम के अंदर होता है, यहाँ पे प्लॉट किया है कि कौन सा पिक्चर कहाँ पे। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी that is the fourth intercostal space, that is 3.8 centimeter. These are the lower border, this is 9 centimeter from the mid sternal line, and this one is the 2 centimeter from the marginal line. तो यहाँ पे counting what sternal margin and mid sternal line दिया है। sternal margin that is the margin of the sternal body, mid sternal line means exactly at the mid of the sternum. तो ये डायरेक्टली हम काउंट करके देख सकते हैं। जो भी मैंने नॉर्मल सर्कुलेशन बोला
it's just like that कि यहाँ पे superior vena cava है, superior vena cava it just compile blood from the upper extremity, upper head and neck portion, then inferior vena cava along with the upper extremities, inferior vena cava venous flow is just come from the lower body. ये दोनों राइट एट्रियम में ओपन होते हैं, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, तो हैविंग हियर called as a wall, it is arterioventricular wall. Then from this right ventricle it just goes to the pulmonary trunk, that is from this is goes to the lungs. Then from the lungs it just came to the left atrium, from left atrium to the left ventricle. This is another arterioventricular wall, this is also called as a mitral wall. Then from left ventricle to the aortic to the aorta, so that having also here having also walls. मीन्स जब कभी सिस्टोल और डायस्टोल होता है, तो सिस्टोलिक कंडीशन में चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायस्टोलिक कंडीशन में रिलैक्स होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वॉल्स बहुत ज्यादा काम में आते हैं। वो सिस्टोल होने के बाद दूसरे वॉल्स ओपन करता है, तो वहां से ब्लड नीचे पुश होता है और फिर वो आगे बढ़ता है। तो ये फिजियोलॉजिकल कार्डियक साइकिल में हम और एक्सप्लेन करेंगे। इन राइट एट्रियम तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रिलेटेड विद राइट एट्रियम है जो हम देख सकते हैं, पैल्पेट कर सकते हैं। अगर हमने हार्ट डायरेक्टली देखा तो राइट एट्रियम, हमने देखा कि राइट अपर चेंबर है, किस चीज से ये बनता है ये भी हमने अभी देखा कि राइट बॉर्डर it forms the right border, upper border of sternocostal surface and the base of the heart. In along the upper edges ठीक है, dissection का point है। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैंने लिया है ताकि एक ही जगह पे कंपेयर कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल सेक्शन बहुत बड़ा है, वहाँ पे हम ज्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर विद एनाटॉमिकल सेक्शन, क्योंकि हार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी ओपन करके देखेंगे नहीं ये स्ट्रक्चर्स, इसलिए जस्ट फोकसिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल पोर्शन। एक्सटर्नल फीचर्स हार्ट, एक्सटर्नल फीचर्स में जो सबसे ये होता है, चेंबर है वर्टिकली इलोंगेटेड होता है, जैसे दो ट्यूब वहां पे ओपन हो रहे हैं, इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, और वहां पे बीच में टैंक जैसा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, दोनों एंट्रीज ट्यूबुलर है, वेन्स बड़ी होती है, इसलिए वो भी समवॉट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट कैविटी दैट इज द एट्रियम वन। पिक्चर में आप देख पाओगे कि अगर ये नीचे से आ रही है ऊपर से आ रही है, तो दिस इज समवॉट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज द एट्रियम। देन यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मेन होते हैं, दैट इज सल्कस टर्मिनालिस एंड क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब अगर इंटीरियर में हम आर्टरियल चेंबर के गए, वहां पे जैसे दोनों ट्यूब से फोर्सफुली ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो जो आगे वाली वॉल होंगी, अगर यहाँ से कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है और यहाँ पे वो टच हो रहा है, तो ये जो वॉल होती है, ये जो पोर्शन होता है, ये समवट रफ रहेगा, जहाँ पे कुछ भी फ्लो नहीं है वहां पे वो स्मूथ रहेगा। जैसे हम कभी नदियों में जाते हुए देखेंगे कि वहां से जहाँ से पानी गिरता है तो आगे गड्ढा हो जाता है, तो ये सेम स्ट्रक्चर है, ब्लड आ रहा है, एक वॉल ये कर रहा है, तो वहां पे कुछ ब्रूज या कुछ रफ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अगेन वहां पे एडिशनल सपोर्ट मिलेगा लगेगा ताकि वो रप्चर ना हो। इसलिए जो स्ट्रक्चर्स इंटरनली ये होते हैं मस्कुलर, वहां पे एडिशनल मस्कुलर रिज रहती है विद इन द कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज एन क्रिस्टा टर्मिनालिस, एंड जस्ट अपोजिट टू दैट एट द आउटर सेगमेंट, जहां से वो थिक रहेगा इंटरनली, तो बाहर से भी हम पाल्पेट कर सकते हैं, दैट इज द सल्कस टर्मिनालिस। अब ये जो सल्कस है, जहां से अपर पार्ट ओपन हो रहा है, वहां पे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एसे नोड, दैट इज कॉल्ड एज एन पेसमेकर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की पंपिंग होती है, इट जस्ट स्टार्ट विद दिस एसे नोड, वो वहीं पे प्रेजेंट होती है विद इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में दोनों एसे नोड, वी नोड दोनों प्रेजेंट होते हैं, देन इट जस्ट गोज टू द middle portion of the heart ventricle walls, and then the fibers is just goes to all entire हार्ट बॉडी। तो ये भी राइट एट्रियम में हमें सिचुएटेड होता है। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, तो ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बॉडी में कि ये ऐसे नोड है, इट जस्ट स्टिमुलाई, सो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज जस्ट अ फिजियोलॉजिकल कांसेप्ट। यहाँ से स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है और वो स्प्रेड होता है। देन are the inlets of the right atrium, superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus. This is the vein which are means the blood which are then from the heart to the atrium, means
पूरे बॉडी को तो ब्लड सप्लाई हार्ट देता ही है, अलॉन्ग विद दैट वो खुद को भी ब्लड सप्लाई देता है। मीन्स जब अओर्टा की सबसे पहली जो ब्रांच होती है, मीन्स अओर्टा इज डिवाइडेड इनटू असेंडिंग अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा एंड डिसेंडिंग अओर्टा। असेंडिंग अओर्टा की ही एक ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड एज एन कोरोनरी आर्टरी, और वो आर्टरी कोरोनरी एज पर द वर्ड दैट इज द कोरोनरी जस्ट सप्लाइज टू द हार्ट। कोरोनरी देन सप्लाई हो गया तो फिर से ड्रेनेज आएगा, तो ड्रेनेज कहाँ पे हो रहा है, तो अगेन इज इन द फर्स्ट anterior cardiac veins, that is venocardius, that is CBCN vein and some right marginal vein, ये सभी के सभी राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। इंटरनल फीचर्स ये हमने देखा, पेक्टिनेट पार्ट, इंटरनल आर्टरियल सेप्टम। हाँ, ये जो मैंने बोला कि दो आर्टरी के बीच में अब जो ये होता है कर्टन होता है, कर्टन लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज एन सेप्टम। तो इंटर आर्टरियल सेप्टम मींस दो आर्टरियम के बीच में, ठीक है, जैसे क्वाड्रेंगुलर बोला वैसे के वैसे ही है, तो दो आर्टरी के बीच में एक कर्टन होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो फॉर्मेशन होता है दैट इंटर आर्टरियल सेप्टम का, जैसे हमने बोला कि इट्स जस्ट लाइक अ कर्टन, कर्टन मींस ये एक पोर्शन होगा क्वाड्रेंगुलर, एक पोर्शन होगा और ये चिपक गया। तो यहाँ पे ये सीधा एक सिंगल कर्टन नहीं है, यहाँ पे जो कर्टन फॉर्म होता है इट लाइक दिस, ठीक है। मींस जो ब्लड फ्लो होगा, ये दो फिंगर्स जो है दिख रहे हैं, ये जो दो फिंगर्स है ये ओपनिंग ऐसे होती है, ठीक है। जो दो एट्रियम के बीच में मैंने जो ओपनिंग बताई वो डायरेक्टली बीच में छेद नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक दिस। मींस यहाँ पे जो ओपनिंग है कि यहाँ से ब्लड ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और फिर ये ब्लड यहाँ से दूसरे चैम्बर में चला गया। ये जो सेप्टा फॉर्म होते हैं बेसिकली एट द सेंटर, मींस ऊपर आर्टरियम है, नीचे वेंट्रिकुलर है, बीच में सेप्टम फॉर्म होते जाते हैं, वो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, तो राइट और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ऊपर से भी एक सेप्टम नीचे आ रहा है, नीचे से एक ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से वहां पे ओपनिंग होती है इन बिटवीन टू आर्टरियम, ठीक है। जैसे बर्थ हो जाएगा वो क्लोज होनी चाहिए। अब क्लोज कैसे होंगी, तो ये प्रेशर के कारण एक दूसरे को ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। मींस वहां पे एडिशनली कोई पोर्शन क्रिएट नहीं होता। अगर छेद ऐसा रहा, सिंपल ऐसी ओपनिंग रही, तो इसको क्लोज करने के लिए एडिशनली वहां पे कुछ लगाना पड़ेगा, पर ये ओपनिंग वैसे नहीं है। इस ओपनिंग सर्कुलर मैनर एस मैनर में है, ये सिर्फ चिपक जाएंगे प्रेशर के कारण, और ये इतने अच्छे से चिपक गए ताकि वो ओपनिंग जो है जो बात के पहले प्रेजेंट होती है वो क्लोज्ड हो जाए। इस कंडीशन में क्लोज नहीं हुई, जैसे हमने बोला कि दिल में छेद है, तो ये कंडीशन में ये ओपन ऐसे ही रहते हैं। वैसे कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी करके एक्स्ट्रा पैच लगा के इसको चिपकाया जाता है स्टिच करके, या भी तो बलून से भी सर्जरी आती है, सिर्फ वो कैथेटर से बलून पुश करते हैं और ये ओपनिंग में यहाँ पे बलून लाके छोड़ देते हैं ताकि वो मिक्सअप ना हो। दिस सेप्टम ये अलग है, बाकी जगह पे जब वेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म होते हैं वो डायरेक्टली चिपक रहते हैं, मींस वो जगह से वो निकले तो वो चिपक गए। इसलिए बाकी जगह पे दिल में कहीं भी छेद मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता। जहाँ पे भी छेद मिला वो ऊपर सेक्शन में मिलता है, दैट इज रिलेटेड विद अपर सेगमेंट, दैट इज at the interarterial septum. Then this is the pectineate part. ये सिर्फ उन्होंने इसका डिवीजन किया है, साइनस वेनरम, पेक्टिनेट पार्ट, इंटरआर्टेरियल सेप्टम, और उसी का हमने ये डिस्क्रिप्शन दिया। दिस इज फोसा ओवैलिस, एनुलिस ओवैलिस, फोरामिन ओवैलिस, एक ही चीज को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। मींस फोसा ओवैलिस, एनुलर ओवैलिस मींस जो हमने ओपनिंग बताई उसकी जो मार्जिन होती है दैट इज कॉल्ड एज एन एल्यूनर ओवैलिस, क्योंकि अब ये चिपक गया। बेसिकली जब हार्ट हम डिसेक्ट करते हैं तो ये हमें अंदर अगर फिंगर हमने प्रोटोट किया एट्रियम में, तो ये सब हमें पाल्पेट होता है, हम इसको देख भी सकते हैं। और फोरामेन ओवैली परसिस्टेंट, अगर ये छेद परसिस्टेंट रहा तो दैट इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन फोरामेन ओवैली। देन राइट वेंट्रिकल, अब राइट एट्रियम से हम नीचे आए तो राइट एट्रियम से ये नीचे है। अभी हमने देखा है कि ये इंफीरियर बॉर्डर फॉर्म्स करने स्टर्नोकोस्टल सरफेस पे होता है। मेन फंक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे आया, दूसरे से तीसरी जगह पे आया, वो चेंबर में सिर्फ ये काम करते हैं। अलग अलग चेंबर के अलग अलग प्रेशर होते हैं, वो हम कार्डियक साइकिल में देखेंगे। देन अगेन एक्सटर्नल फीचर्स, एंटीरियर इंफीरियर टू पार्ट्स होते हैं, इनफ्लोइंग आउटफ्लोइंग। इनफ्लोइंग मींस जो ऊपर से आ रहा है दैट इज इनफ्लोइंग, आउटफ्लोइंग इन्फिंडिबुलम रहता है, जो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ वो जा रहा है, दैट इज रिलेटेड विद द अपर सेगमेंट जस्ट गिव राइज टू द पल्मोनरी ट्रंक। वो आउटफ्लोइंग में मींस एक जगह से ब्लड आया दूसरी जगह पे चला गया, that is the interior of this. Then
external features of the right ventricle, two surfaces, anterior, inferior. Internal features having tricuspid orifice, means जो हमने बताया कि right atrium से right ventricle में आया, having a wall called as an arterioventricular wall. That is here it is a tricuspid wall. In another segment, it is the left side, that is mitral wall or the bicuspid wall. नाम tricuspid means तीन कब्स होते हैं, इसलिए इसको tricuspid बोला गया है. ये कब्स भी एक दूसरे से अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल पोजीशन में. तो ये चिपक के रहते हैं, मीन्स जो ये रहते हैं, जो फ्लोइंग है वो इस तरह से बंद होता है. मीन्स यहाँ पे इंटरनली हैविंग मस्कुलर टेंडनिस, जो उसको ओपन कर रहे, क्लोज कर रहे, ओपन कर रहे, क्लोज कर रहे. तो बेसिकली दीज आर द ट्राबेक्युलर कॉर्नी टाइप्स ऑफ रिजेस. अब यही जो मैं बोला कि जो कब्स है उसी से रिलेटेड पोर्शन है कि उसमें रिज है, ब्रिज है, पिलर्स है. अब उसका ये पोर्शंस होते हैं जो कैपिलरी मसल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वो ओपन करने का काम करना है, क्लोज करने का काम करना है. इतने से चैम्बर में वहां पे बहुत सारे कैपिलरी मसल्स भी होते हैं. कैपिलरी मसल्स दे हैविंग थिक बैंड at the attachment towards the walls of the heart, and having a ciliary structures which is just attached to the another end of the walls. Then interventricular septum, जैसे arterial septum है, सेम स्ट्रक्चर है, दो वेंट्रिकल्स को वो सेपरेट करता है. सिर्फ यहाँ पे ये नहीं रहता, कोई भी ओपनिंग नहीं रहती, दो वेंट्रिकल को वो सेपरेट करता है. Then left atrium posteriorly present है, quadrangular chamber है, situated posteriorly. Its appendage the left auricle and projects anteriorly to overlap the infundibulum of the right ventricle. कौन कौन सी चीजें फॉर्म करते हैं ये हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि वो पोस्टेरियर स्टर्नो ये होता है, लेफ्ट सरफेस में होता है, लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म करता है. यहाँ पे it receives the oxygenated blood from the lungs to the four pulmonary veins, and it pumps into the left ventricle through the left arterioventricular or the bicuspid or the mitral orifice, which is guarded by the walls of the same name. Then again, having some features at the posterior surface of the atrium forms the anterior wall, having the sinus pericardium, pulmonary veins. The anterior wall of the atrium is formed by the interarterial septum. ये again anterior posterior है, इसलिए anterior septum कहाँ पे है वो मेंशन किया है. Then again same the musculopectomy, septal wall वगैरह, ये same structure वहाँ पे में internally मिलेंगे. Then arterioventricular walls, both the walls are made up of following components, having fibrous ring, having cups. ठीक है, एक जगह पे रिंग है, दूसरी जगह के कप्स है, वो कप्स सिर्फ क्लोज्ड होते हैं और बंद होते हैं. The walls are closed during the ventricular systole by opposing the arterial surfaces. Means एक जगह पे जब ventricular systole में जाएंगे तो ये walls बंद होंगे. हम डिटेल में कार्डियक साइकिल में लेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखें कि having the walls present in the two ventricles. Then they having chorda tendency, the tree margin को ventricular surface के कप्स को अटैच रहती है कैपिलरी मसल के साथ. सिर्फ वो जो बंद करना है या ओपन करना है उससे वो रिलेटेड रहते हैं. तो having just anatomical names. In conducting system, ये important है as a physiological aspect. जो कुछ हार्ट की पंपिंग होती है, ठीक है, या हार्ट बीट हम जिसे बोलते हैं, इट जस्ट पोर्शन रिलेटेड विद द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. जैसे हमने बोला कि सबसे पहला जो पोर्शन है इट इज द साइनोआर्टेरियल नोड और एसए नोड, इज कॉमनली कॉल्ड एज एन पेसमेकर ऑफ द हार्ट. ये हमने बहुत बार भी सुना होगा कि किसी का ऑपरेट हुआ होगा उसको पेसमेकर. यस सर, ओके. ये भी हमने भी सुना होगा कि कोई आपके परिचित होंगे जिनका पेसमेकर का ऑपरेट हुआ है. ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम आर्टिफिशियल पेसमेकर बॉडी में इंसर्ट करते हैं. नेचुरली बॉडी में खुद का पेसमेकर होता है और दैट इज एसए नोड. पेसमेकर का काम वही है कि हार्ट की जो इम्पल्स है वो जनरेट की करे ताकि वो सिस्टोल और डायस्टोलिक कंडीशन में जाए. यानी हम जो कार्डियक साइकिल से ही हमारा ब्लड फ्लो जो होता है, इट जस्ट डिपेंड अपॉन द कंडक्टिंग सिस्टम एंड इट इज जस्ट स्टार्टेड विद द एसए नोड. Is called as a pacemaker of the heart. It generates the impulse at the rate of 17 per minute. Then initiate the heartbeat. It's a horseshoe shape just present in the right atrium. Then यहाँ पे
ये सुपीरियर वेना के पास हमें मिलेगा, दिस इज एसे नोड। At the tricuspid wall near to the intra-arterial septum, they having another node called as an arterioventricular node. यहाँ पे हमें next node मिलेगा, that is arterioventricular node. Then having a bundle of his means यहाँ से वो ट्रांसफर होगा interventricular wall पे, this is interventricular septum, वहाँ पे bundle of his करके स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। और then they having number of fibers means यहाँ से वो तो इसमें डिवाइड होगा लेफ्ट और राइट में, then they having the number of fibers called as Purkinje's fibers। तो ये complete ventricular walls को spread होता है, ताकि जब हम ventricular contraction होता है तो ये impulse generate होने के कारण वो ventricular contraction होगा। तो this is the conduction system, just go one by one। हमने SA node देखा। Second one, AV node, it is a smaller than the SA node, situated at the lower dorsal part of the right atrium septum। यहाँ पे हमने डायग्राम डिफाइन किए। इसका इम्पल्स कम होता है एवी नोड से, दैट इज 60। मींस एसए नोड से जनरेट हुआ, एवी नोड को गया, इम्पल्स थोड़ा सा डाउन हुआ। देन आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल और एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस एक ही नाम है। इट इज द ओनली मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द आर्टरियम एंड द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। मींस बाकी जगह पे जो मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलेचर ऑफ हार्ट होता है, हैविंग अ सराउंडेड स्ट्रक्चर, चेम्बर्स होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं होता। लेकिन ये जो फाइबर्स है, जो बंडल्स ऑफ हिस के फाइबर्स होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं बिटवीन द टू चेम्बर्स, दैट इज द आर्टरी एंड द वेंट्रिकल। देन डिसेंड एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मेंबर्स, नीचे आए, इस हिस्सों में डिवाइड हुए। इन राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल as down to the right side, जैसा राइट बोला है तो राइट में जाएंगे। in the same one left side bundle AV bundles that descends and pass to the left side of the interventricular septum and distributed to the left ventricle after dividing to the Purkinje's fibers. Lastly, it is the structure Purkinje's fibers forms the subordinal plexus, and they are the large scale fibers just striated only their margins and usually possess double in nuclei। अब ये complete portion है जो एनाटॉमिकली हमें देखते हैं बॉडी में कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने चेम्बर देखे, वॉल्स देखे, आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्स के साथ ही वहां पे पल्मोनरी वॉल्स और आउटिक वॉल्स भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ये कप्स है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्स, तो वो उन्होंने कस्पिड वॉल उनको कहे, दैट इज द आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। मींस आर्टरियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, तो पल्मोनरी ट्रंक और अोर्टा के बीच में वॉल्स होते हैं, जैसे हमने ये पिक्चर्स में देखे थे। इन दिस वन, दिस इज द आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। यहाँ पे भी हमने वॉल्स देखे, ये वाले, दैट इज कॉल्ड एज एन सेमील्यूनर वॉल्स। तो सिर्फ जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज समवॉट इन सेमील्यूनर स्ट्रक्चर, सो दैट इज कॉल्ड एज एन सेमील्यूनर वॉल्स। दिस इज द फेटल सर्कुलेशन, जो मैंने बोला कि थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल सर्कुलेशन से। इसमें यहाँ पे जब सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से जब ब्लड आता है राइट एट्रियम में, यहाँ पे एक ओपनिंग है, वहां से वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में आता है, आउटा से बॉडी में जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ब्लड ऐसा है, जैसे भी राइट चेम्बर में आया तो वहां पे नीचे ओपनिंग है। ठीक है, जहां जहां से ओपनिंग मिलेगी तो वहां से वो ब्लड 100% पास होना ही है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो कुछ पोर्शन ओपनिंग ऊपर है, वो जो ओपनिंग है आर्टरियम की वहां से चला गया, लेकिन कुछ ब्लड ऐसा है जो नीचे आ गया। ठीक है, मींस नीचे कहाँ पे आया, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है तो उसका पाथ है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। जैसे हमने बोला कि लंग्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है, तो लंग्स में नहीं जाता, वो पल्मोनरी ट्रंक से डायरेक्ट आउटा में जाता है। ठीक है, वहां पे एक ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, वहां पे एक ओपनिंग होती है डक्टस आर्टेरियोसस, और ये सिर्फ बिफोर बर्थ प्रेजेंट होती है। बर्थ होने के बाद जैसे ये ओपनिंग बंद होती है इंट्राआर्टेरियल सेप्टम की, वैसे ही ये ओपनिंग भी बंद हो जाती है प्रेशर, क्योंकि आउटा का जो प्रेशर है एज कंपेयर्ड विद अदर स्ट्रक्चर्स ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। आउटा में कंटिन्यूअस प्रेशर होता है, दैट पल्सेशन होता है, जैसे उसको पूरे बॉडी को ब्लड देना है। ठीक है, उसका खुद का इम्पल्स नहीं है, जैसे अभी हमने ये देखा कि बाकी हार्ट में इम्पल्स जनरेट हुए, पर ये इम्पल्स कहीं और जनरेट नहीं होते। मींस ये बाकी जगह पे इम्पल्स नहीं आएंगे,
pulmonary trunk to lungs गए, lungs to वो squeezing activity से नीचे आए, सेम aorta की भी squeezing activity चालू होती है, तो यहाँ पे उस कारण ये ओपनिंग बंद हो जाती है, मींस जो डायरेक्टली गया वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta में गया, aorta से बॉडी में चला गया, लेकिन जो नीचे आ गया था वो पल्मोनरी ट्रंक में गया और पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स ना जाते हुए वो डायरेक्ट aorta में चला गया। तो ये अलग होता है बाकी जगह से, यहाँ से सिर्फ फीटल सर्कुलेशन में। तो सेम बाद में बर्थ होने के बाद ये सिंगल लिगामेंट टाइप ओपनिंग होती है, वो भी बहुत बार हम ये नहीं कर सकते क्योंकि फेशिया के साथ वो मर्ज हो जाती है, तो ये एक अनदर स्ट्रक्चर है, जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर सर्कुलेशन। एंड जस्ट गो विद द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हम बॉडी के हिसाब से देख सकते हैं? जस्ट गो विद द फर्स्ट, दे हैविंग द वॉल्स ऑफ द हार्ट, दैट इज द आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम एंड इधर एंडोकार्डियम। तीन वॉल्स होते हैं, पेरी, मायो और एंडो। इसमें पेरिकार्डियम having two layers, that is the parietal and the visceral. Space between the two layers is called as a pericardial cavity, and having a pericardial space there, they're having pericardial fluid present over there. जो important है for the contraction systolic condition, it is related with myocardium. Pericardium सबसे outer वाला जो सबसे important है heart के function में, that is related with the myocardium, and the middle is the middle layer of the heart wall of the heart, and is formed by the cardiac fibers and cardiac myocytes. Basically जो muscles होते हैं, axial skeletal muscles, cardiac muscles, ये अलग प्रकार के होते हैं बाकी मसल्स से। तो ये कार्डियक मसल्स मायोकार्डियम में प्रेजेंट रहते हैं, फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द हार्ट। जो कुछ भी हमें बल्क हार्ट का दिखता है, इट इज जस्ट बाय द मायोकार्डियम। और इसी के फाइबर्स में दे हैविंग कॉन्ट्रैक्टिव यूनिट ऑफ द हार्ट, हैविंग fibers related with the pacemaker, having fibers related with the conducting system of the heart. So this is the important layer related with the heart, क्योंकि बाकी जगह जो भी मेन फंक्शनिंग हार्ट के हो रहे हैं, it is related with the myocardium. Then the last one, it is the endocardium. Endocardium, it is the innermost layer of the heart. It is just a smooth glancing. अब स्मूथ है, पर बाकी जगह पे जहाँ पे जैसे उसकी जरूरत है कि उसको मस्कुलर टेक्निक देने हैं, उसको अटैच करने हैं, पेपिलरी मसल्स को अटैच करने हैं, तो उस तरीके से वो इनर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। देन एक्शंस ऑफ द हार्ट, स्टार्टिंग जस्ट टर्मिनोलॉजी है कि कौन से स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। क्रोनोटोनिक एक्शन में दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट, द हार्ट रेट। It's two types, tachycardia, that is the increase of the heart rate, and bradycardia, that is the decrease of the heart rate. That is the chronotonic topic. ये दोनों conditions हम बाद में डिस्कस करेंगे, किस चीज से tachycardia होता है, किस चीज से bradycardia भी होता है। नॉर्मली मींस अगर मैं बैठा हूँ तो मेरा tachycardia कब होगा, जैसे मैं वो सोच रहा हूँ, एंजाइटी बढ़ गई तो पल्स रेट बढ़ जाते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि हमें एकदम कुछ इमोशनल फैक्टर्स हमने सुन लेती है, बाकी आगे हम देखेंगे। That is the chronotonic action. Then inotropic action, that is the force of a contraction of the heart called as an inotropic action. It is two types, positive inotropic and negative inotropic. Just action है, हम समरा ये कर रहे हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की है। inotropic action, that is the conduction of the impulse of the heart, again positive and the negative. Then this is the extensibility of the cardiac muscles, it is also positive and the negative. Then divisions of the circulation. There is two types of circulation present in the body, that is systemic circulation and pulmonary circulation. ठीक है, जो हमने circulation blood का देखा within the heart, ये अलग है, ये circulation अलग है। जैसे heart का जो main function है, blood supply towards the body, that system is called as a systemic circulation. In this section, blood just goes to the organs. Okay, means oxygenated blood aorta से बाहर निकला, वो organ में गया, and वो हर टिश्यू को ऑक्सीजन उन्होंने या न्यूट्रिशन उसने सप्लाई किया, then it just come to the heart. ठीक है, means हार्ट से निकला और हार्ट में आया, हार्ट से निकला पर्टिकुलर ऑर्गन तक गया, ऑर्गन से वापस हार्ट तक आया। That circulation is called as a systemic circulation, whereas where the lungs is involved, that is called as a pulmonary circulation. Basically pulmonary is related with the lungs,
मीन्स अभी हार्ट से निकला, ऑर्गन में गया, हार्ट को आया, ठीक है। अब हार्ट से निकलेगा, लंग में जाएगा, लंग से फिर से हार्ट में आएगा। ये जो सर्कुलेशन हुआ दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपल है, बाकी ये नहीं है कि जहाँ पे लंग इन्वॉल्व हुआ वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, वहां पे अदर ऑर्गन्स थे वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पे सर्कुलेशन इसलिए बोला है कि एक जगह से निकल रहा है तो वहीं पे आ रहा है, मीन्स हार्ट से निकला, ऑर्गन में गया, हार्ट को गया, ठीक है। यहाँ पे हार्ट से निकला, लंग में गया, फिर से हार्ट को आया, तो ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ था, दैट इज द सर्कुलेशन। दिस इज टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब फंक्शंस अलग है, जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ जाता है और बॉडी से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को आता है। दिस इज द जस्ट difference between two types of this circulation. Then the important structure related with the cardiac system or the physiological concept, that is the cardiac cycle. जो कुछ भी कार्डियक एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज एन कार्डियक साइकिल। अब ये हम जस्ट एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसी कार्डियक एक्टिविटी होती है। बहुत बार हमने ये वर्ड सुने कि सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल इट इज रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इट इज रिलेटेड विद द रिलैक्सेशन। अब हर चेंबर का ये अलग अलग होता है, मीन्स हर चेंबर को कॉन्ट्रैक्ट होना है, हर चेंबर को रिलैक्स होना है। अब ये टोटल एक्टिविटी कितने सेकंड की होती है, तो इट इज जस्ट 0.8 सेकंड, ठीक है। इस पूरा 1 सेकंड की भी एक्टिविटी नहीं है, और बेसिकली ये 0.8 सेकंड में इतनी सारी एक्टिविटी कंप्लीट करता है हार्ट। जस्ट एक जगह से दूसरे जगह पर ब्लड गया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से लंग्स में गया, लंग्स से नीचे आया, नीचे से हार्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में गया, और फिर बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है विद इन 0.8 सेकंड। अब इसको सिस्टोलिक एट्रियल सिस्टोल, arterial diastole, ventricular systole, ventricular diastole, ऐसे इसमें उसको डिवाइड करते हैं। You just go with the definition, that is cardiac cycle. It is defined as the suspension or the sequence of the coordinated events taking place in the heart during each beat. Each heartbeat consists of two major periods, that is the systole and the diastole. During systole, heart contracts and pumps the blood to the arteries. During diastole, heart relaxes and blood fills in the heart. All these changes are repeatedly during the heartbeat in the cyclic manner. Division and duration of the cardiac heart. First one, the arterial events, that is the arterial systole और arterial diastole. जैसे मैंने बोला कि complete जो cycle है वो 0.8 की है। Arterial systole वो उसमें भी division है। Arterial systole it is just 1.1 second. Arterial diastole it is 0.7 second. Means arterium सबसे ज्यादा time relaxed है as compared with the ventricle. वेंट्रिकल का जो इवेंट होता है वो 0.8 सेकंड का है। यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये 0.3 सेकंड है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये 0.5 सेकंड है, ठीक है। देन जस्ट गो विद द दिस टर्मिनोलॉजी, दैट इज अब यहाँ पे भी वो डिवीजन होता है। जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल मैंने बोला कि वो 0.3 सेकंड है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल दैट इज 0.5 सेकंड। तो उसके भी अलग अलग ये है फेजेस है। ये फेजेस ही जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन हार्ट साइकिल। पिक्चर दिख रहा है सभी को? इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, यानी एक्चुअल में क्या होता है वो हम देखेंगे। दिख रहा है ये स्क्रीन? हेलो जी दिख रहा है स्क्रीन। ओके ओके सर। सो बेसिकली अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन से ज्यादा थोड़ा सा एक अप्लाइड एस्पेक्ट है, इसलिए इसको मैं वर्ड में नहीं लिख पाया। एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है अगर वो समझ में आ गए तो वो फेजेस भी इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हमने स्टार्ट किया, जैसे बोला कि दिस इज द साइक्लिक फेज, तो एक दूसरे से जुड़े, तो स्टार्ट सबसे पहले अगर हम आर्टेरियल सिस्टोल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है कि आर्टरिया सिस्टोल मींस आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब ये दोनों आर्टेरियम के, ठीक है, हम समझने के लिए सिर्फ एक आर्टेरियम लेंगे, एक साइड लेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है, और उसी से कंपेयर राइट साइड है। तो जस्ट गो विद द लेफ्ट फर्स्ट। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये आर्टेरियल सिस्टोल में गया, तो लेफ्ट एट्रियम सिस्टोल हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जो वॉल है दैट इज कॉल्ड एज एन बाइकस्पिड वॉल, ओके। सिस्टोल में है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये वॉल ओपन हुई, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे जो ब्लड है वो नीचे आ गया, ठीक है। ये चेंबर ओपन है, ये चेंबर ओपन है, ये दोनों चेंबर ओपन है।
अब ऐसे कंडीशन में यहाँ की जो दूसरी कनेक्टिविटी है दैट इज टुवर्ड्स द aorta, दिस इज द aorta, ठीक है। अब ये चेंबर सिस्टोल में है, ये चेंबर डायस्टोल में, ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये रिलैक्स्ड है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ ब्लड आने के बाद ये यहाँ पे भी जा सकता है। पर इस कंडीशन में ये वॉल माइट्रल वॉल ओपन है और यहाँ पे जो aortic वॉल होती है ये क्लोज्ड होती है। Means they having connection in between the left atrium and left ventricle only, not with the aortic opening. ठीक है। सॉरी, अब वो फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा, फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा, हमारा फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके ओके, ये मैं स्लाइड वही आपने पूछा फुल स्क्रीन सर। दी तो ना शायद? हाँ हाँ सर, मैंने फुल स्क्रीन की है, नहीं दिखा? हाँ, नहीं फुल स्क्रीन नहीं, तो नॉर्मल आ रहा है। एक बार दोबारा करके ट्राई कीजिए। ओके ओके सर, ओके सर, मैं फिर से शेयर। हाँ सर, अभी आई सर फुल स्क्रीन? हाँ शायद, हाँ अब आ गया जी। ओके सर, ओके सर। चलिए, स्लाइड प्रेजेंटेशन में छोटा दिखता है इसलिए मैंने इसको फुल स्क्रीन किया। हाँ, तो ये जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, तो यहाँ पे aorta के वॉल क्लोज है इसलिए वो aorta में नहीं गया। ठीक है। अब बेसिकली जैसे हमने बोला कि आर्टेरियल सिस्टोल कितने टाइम का है, जस्ट 1.1 सेकंड, और बाकी 0.8 सेकंड ये ओपन रहता है। ठीक है। अब ये ओपन है, वॉल्स से रिलेटेड पोर्शन में आएंगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जब सिस्टोल में जाता है तब पूरे के पूरा ब्लड जो है वो सिस्टोल के टाइम में वेंट्रिकल में नहीं आता, वेंट्रिकल में खुद कुछ पोर्शन में ब्लड होता है। ठीक है। वो जो ब्लड होता है वो नियर अबाउट 80% ब्लड उससे पहले ही है, जो आखिरी का पुश करने का काम होता है। मीन्स वो समवट पर्टिकुलर है, ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ग्रेविटेशन से भी ऊपर से नीचे ब्लड आएगा, और कुछ पोर्शन वहां पे लेफ्ट एट्रियम में बढ़ जाता है, इसलिए वो होता है और पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो ऐसे वक्त ये वॉल बंद है और ये वॉल ओपन है। स्टेज इज कॉल्ड एज एन आर्टेरियल सिस्टोल। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसके हिसाब से अलग अलग है, किसी जगह पे इसमें आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोला गया है, कंसेप्ट सेम है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का ब्लड खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ पे पूरा ब्लड आ गया मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे जो वॉल है दैट इज बाइकस्पिड वॉल वो क्लोज हो जाती है। ठीक है। एट्रियम का प्रेशर जो होता है वो यहाँ का जो प्रेशर होता है वो मर्क्यूरी में गिना जाता है mm of Hg। ये कुछ नहीं होता, ये जब ओपन होता है तो दोनों का प्रेशर सेम है। यहाँ पे प्रेशर एट द स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है। अब आर्टेरियल सिस्टोल हो गया मीन्स इसका काम हो गया। नेक्स्ट जो साइक्लिक कंडीशन आएंगी वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की आएंगी, तो वो आने से पहले ये जैसे अगर ये सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, ये ब्लड आउटफ्लो हो सकता है यहाँ से क्योंकि वॉल ओपन थी। ठीक है। इस कंडीशन में इसलिए सबसे पहले वॉल क्लोज होगी। ठीक है। अब ये कंडीशन में यहाँ पे वॉल क्लोज्ड है माइट्रल वॉल, यहाँ पे भी aortic वॉल क्लोज्ड है, तो ये पैक चेंबर हो गया। ठीक है। मींस दोनों वॉल क्लोज्ड है, यहाँ पे ब्लड है, ब्लड कहीं पे भी नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो aortic प्रेशर से कम होता है। aortic का नॉर्म, यस सर, जो aorta का जो प्रेशर होता है इट इज 18 mm of Hg। वेंट्रिकल में कुछ भी प्रेशर नहीं है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इसलिए अगर इस कंडीशन में ये वॉल ओपन होगी तो नॉर्मली बड़े प्रेशर से छोटे प्रेशर में जाएगा, इसलिए ये वॉल क्लोज्ड है। कहाँ तक क्लोज रहेगी, जहां तक ये कंडक्शन सिस्टम वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ा नहीं देता। मींस ये 0 में था, 0 से ये बढ़ते बढ़ते 120 तक जाता है, और जब वो 120 तक जाता है तब ये वॉल ओपन होती है, और यहाँ पे प्रेशर 8 ही था, इसलिए फिर ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब प्रेशर 120 तक लेके जाएगा तब ये वॉल ओपन होंगी। ऐसे कंडीशन में ये वॉल क्लोज्ड है। ठीक है। अभी तक ये वॉल क्लोज्ड है, ये आखिरी तक अभी क्लोज्ड ही रहेंगी क्योंकि ओपन सिर्फ आर्टेरियल सिस्टोल में हो रही है, और यहाँ पे ये क्लोज सिस्टोल कंडीशन में गई। पहले दोनों पोजीशन, दोनों वॉल बंद थी, इसलिए इस पोजीशन को या इस स्टेज को जो नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ही चेंबर है, दोनों वॉल क्लोज्ड है। अब नेक्स्ट पोर्शन में इसका जो प्रेशर है 120 तक चला गया,
ऐसे कंडीशन में फिर aortic वॉल ओपन होती है और फिर इस जगह से ये प्रेशर जो ब्लड होता है वो अवोर्टा में चला जाता है और दैट इज कॉल्ड एज एन इजेक्शन पीरियड। ठीक है, इजेक्शन पीरियड बेसिकली इट इज टू टाइप ऑफ इजेक्शन पीरियड। फर्स्ट वन रैपिड इजेक्शन पीरियड मींस यहाँ पे 80 प्रेशर है, यहाँ पे 120 प्रेशर है, तो जैसी वॉल ओपन होगी तो प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिए वो एकदम से पुश चला जाएगा। रैपिड इजेक्शन मींस जैसे ओपन होगी तो रैपिडली वो चला गया। जैसे मैंने बोला था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्स पे भी इसका इफेक्ट होता है। ऐसे कंडीशन में जो आउटा की वॉल होती है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होती है, वो थोड़ा सा साइज उसका बढ़ा लेती है ताकि वो प्रेशर उसको ये हो जाए, सहन कर पाए वो, इसलिए उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब ये दोनों का प्रेशर समय के लिए सेम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों चेंबर एक ही जैसे काम करते हैं। मीन्स ये चेंबर खत्म पंप हुआ 120 तक गया, 120 के बाद ये ओपन हुआ, फिर वो आउटा में चला गया। अब धीरे धीरे इसका प्रेशर कम होते जाएगा क्योंकि इसकी ये एबिलिटी नॉर्मली 120 तक नहीं रहता, तो इसकी प्रेशर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होते जाएगा तो जो इजेक्शन होगा वो स्लो होगा। मीन्स स्टार्टिंग विथ फास्ट इजेक्शन पीरियड देन स्लो इजेक्शन पीरियड। और जब इसका प्रेशर अगेन 80 के नीचे आता है, ऐसे कंडीशन में फिर से ये वॉल क्लोज हो जाती है। ठीक है, जब तक वो 80 के अबव था ये वॉल ओपन रही, दैट इज aortic वॉल, फिर वो aorta में चला गया, 80 के नीचे जैसा प्रेशर आया तो ये जो प्रेशर वॉल होगी ये क्लोज्ड होगी। इसलिए मैंने जब बोला कि वहां पे यहाँ से जब सिस्टोल होता है, आर्टेरियल सिस्टोल होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ब्लड पहले से होता है। अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका प्रेशर 80 के नीचे आया, तो 80 के नीचे आने के बाद तो वहां पे ब्लड रहेगा, वो वेंट्रिकल में ही रहेगा, वो पुश नहीं होगा कितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट करो, क्योंकि प्रेशर 80 से कम हो गया। जैसे 80 से कम हो गया वॉल क्लोज्ड हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड वहां पे बैठे रहा। अब ये कंडीशन इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन। ठीक है, अगेन यहाँ पे दोनों वॉल क्लोज्ड है, वेंट्रिकल में भी ब्लड है। ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिया गया इसको दैट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वो सिस्टोल में जा रहा था, इसलिए इस कंडीशन में यहाँ पे क्लोज्ड है दोनों जगह पे, यहाँ पे ब्लड भी है, तो इस स्टेज को जो बोला जाता है दैट इज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज आएगी वो कौन सी आएंगी, ये वॉल अभी ये एम्प्टी हो गया तो इसमें फिर से ब्लड फिल करना है, तो इसमें बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाती है। अब तक एट्रियम क्या कर रहा था, एट्रियम रिलैक्स था, ओपन था। एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, तो लंग से आता है। मींस यहाँ पे वो बंद हो गया, यहाँ पे वो बंद हो गया, यहाँ पे क्या हो, ये तो इसकी प्रोसेस कर रहा था, मींस ये पंच हो रहा था, 120 के अबव लेके जा रहा था, इसके दोनों वॉल्स ओपन थे। इस पीरियड में यहाँ पे जो पोर्शन है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, एज अ टैंक। टैंक इसका, तो ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स, जो लंग्स से ब्लड आ रहा है वो कंटिन्यूस आते रहता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन के वक्त नहीं आता। तो लंग्स से ब्लड आ रहा है, वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, दैट इज इन द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। स्लो इजेक्शन पीरियड, रैपिड इजेक्शन पीरियड, दोनों में लंग्स से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे वो स्टोर्ड हो रहा है, यहाँ पे वो स्टोर्ड हो रहा है प्रोटोडायलिस्टिक कंडीशन में। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में भी वो स्टोर्ड हुआ। ठीक है, यहाँ पे ब्लड है। अब जैसे ही ये वॉल खुली, वॉल खुलने के बाद वहां पे पहले से ब्लड है, जैसे मैंने बोला कि ब्लड है तो वो नीचे आएगा, जैसे ही वॉल खुली तो वो नीचे चला जाता है। जितना ब्लड मैक्सिमम पोर्शन में नीचे जा सकता है वो खुद ही नीचे चला जाता है। और उसके बाद जब एडिशनल प्रेशर की जरूरत पड़ती है तो अगेन दैट गोज टू आर्टेरियल सिस्टोल। अब यहाँ पे भी फिर से सेम, जैसे रैपिड इजेक्शन और स्लो इजेक्शन था, सेम यहाँ पे रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग है। मींस जितना ब्लड स्टोर्ड है, दरवाजा ओपन हो गया, सबसे एकदम से नीचे चला गया, दैट इज रैपिड फिलिंग। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये वॉल ओपन है, तो ये दोनों चेंबर एक जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो पूरा ब्लड नीचे आने के बाद यहाँ पे लंग से ब्लड आ रहा है, ये जो लंग से ब्लड आ रहा है, वॉल ओपन है, तो वो यहाँ पे टैंक का रिजर्वायर का काम नहीं करेंगी, वो डायरेक्ट वेंट्रिकल में जाएंगी। मींस जो स्टोर्ड था वो एकदम से चला गया, दैट इज रैपिड फिलिंग। उसके बाद भी जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहता है, लंग से आ रहा है तो वो ब्लड फिर से आता है, दैट इज कॉल्ड एज एन स्लो फिलिंग। अब इसके बाद ये फिर से फिल हो गया, ये एम्प्टी हो गया, इसका प्रेशर कम हो गया, फिर से वो क्लोज हो जाएगा। मींस
पार्ट थोड़ा सा ब्लड रहेगा तो सिस्टोल में जाएगा और फिर से वो क्लोज हो जाएगा, फिर इस फेज में जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब ये जो कंडीशन, ये जो मैंने ये बताया कि इसमें मैक्सिमम टाइम क्या था, आर्टेरियल ये सिस्टोल में था, ठीक है, बाकी इस जगह पे वो डायस्टोल में था। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 0.8 का, 0.8 सेकंड का, तो 0.1 दैट इज सिस्टोल, 0.7 दैट इज डायस्टोल, क्योंकि हर कंडीशन में वो डायस्टोल में। यहाँ पे इन कंडीशंस में मींस यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करना वेंट्रिकल ने स्टार्ट किया तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आएगा। यहाँ पे प्रेशर से वो खुल गया तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आएगा। देन बेसिकली जब तक वो यहाँ पे 3 फेज आते हैं मींस रैपिड और स्लो, ठीक है, तो ये एक और ये 3, तो ये 3 फेजेस सिस्टोलिक कंडीशन में आते हैं वेंट्रिकल के, बाद में ये फिर से रिलैक्सेशन फेज में जाता है, ये रिलैक्स है, ये रिलैक्स है, ये रिलैक्स है। तो यहाँ पे भी जो रिलैक्सेशन है वो 4 पॉइंट्स में डिवाइड होता है, तो वो 0.3 सेकंड तक सिस्टोल में रहा, ये 0.5 सेकंड 0.1 सेकंड तक सिस्टोल में रहा। इज दैट क्लियर? यस। Yes, sir. Yes, clear. एक्चुअली यही कार्डियक साइकिल है जो कंप्लीट चालू रहती है और बेसिकली प्रोसीजर बहुत बड़ी है। ये पूरी प्रोसीजर 0.8 सेकंड में क्लियर हो जाती है। ठीक है, सिर्फ यही कंडक्शन कंटिन्यूस चालू है। अभी ये जो है, जो हमने एक्सप्लेन किया कार्डियक साइकिल, दिस इज द मैकेनिकल कंडक्शन। ठीक है, और इसको जनरेट करने के लिए इससे पहले ही स्टिमुलाई क्रिएट होता है और दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दैट इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। मींस सबसे पहले एसए नोड क्रिएट हुआ, एसए नोड हुआ, स्ट्राइक हुआ, वो एवी नोड को गया, फिर बंडल ऑफ पीस को गया, फिर फ्रिंजेस फाइबर को गया और फिर ये मैकेनिकल प्रोसेस स्टार्ट हुई। ये कंप्लीट प्रोसेस जस्ट 0.8 सेकंड में होती है। तो दिस इज द कार्डियक साइकिल। देन हाँ, ये पोर्शन छूट गया, दैट इज द हार्ट साउंड। जस्ट जो हमने नॉर्मली हार्ट बीट हमें सुनाई जाते हैं, तो इट इज अ सिंपल वन। कोई चीज अगर खुल रही है, जैसे अगर हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं घर के दरवाजे का, अगर हमने उसको फोर्सफुली बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्सफुली बंद करते वक्त थोड़ा सा आवाज होगा, ठीक है, तो आप कितने भी जोर से उसको खोलो कोई भी आवाज नहीं होता। सेम विद द हार्ट साउंड। ठीक है, वो शायद अभी मैंने लिया है, ठीक है, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द कार्डियक जस्ट कार्डियक साइकिल। these are the just ECG means PQRST। ECG बहुत ज्यादा बड़ा होता है, हर इवेंट अलग अलग होता है। दिस इज द P that is related with the arterial contraction, that is the depolarization of the arteria, that is QRS complex, this is the depolarization of the QRST complex, that is depolarization of the ventricle। तो इसके अलग अलग ये होते हैं वेव्स, वो अलग अलग तरीके से काउंट होते हैं ECG में। हम एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सी चीज काउंट कर सकते हैं, जैसे कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, पल्मोनरी आउट ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटिक ट्रंक कहाँ पे प्रेजेंट है, माइट्रल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है, एनाटॉमिकली वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम कहाँ पे सुन सकते हैं। बेसिकली जहाँ पे है वहां पे ही हम नहीं ऑस्कल गेट कर पाते। आपने बहुत बार देखा होगा कि वो हार्ट स्टेथोस्कोप हार्ट साउंड के लिए देखते हैं। वो अगर मुझे पल्मोनरी ट्रंक देखनी है तो बेसिकली वो एनाटॉमिकली प्रेजेंट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है। उसको हम काउंट जब सुनना है हमें उसको, तो वो सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे अच्छी सुनाई देती है, उसका साउंड वहां पे ट्रांसफर होता है। तो दिस इज अगेन द एनाटॉमिकल ये हार्ट साउंड। हार्ट साउंड जैसे मैंने अभी बोला कि कहाँ से वो सुनाई देते हैं, तो जैसे हमने दरवाजे बंद कर दिए, हार्ट साउंड या कोई भी साउंड हमें आता है जोर से बंद करने के बाद, तो सेम वन। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वॉल्स ओपन हुई, ठीक है, जैसे मैंने लेफ्ट साइड का बताया वैसे सेम राइट साइड का है, सिर्फ प्रेशर डिफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अओर्टा का 80 mm ऑफ एचजी होता है, यहाँ पे वो 120 तक जाता है। यहाँ पे राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जब आता है, तो राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है इट जस्ट स्टार्ट विद 8 mm 25 mm। ठीक है, जो यहाँ पे हमने 120/80 बताया लेफ्ट साइड में,
वो यहाँ पे 8 to 25 होता है, मीन्स पल्मोनरी ट्रंक का 8 mm में होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का 8 mm के ऊपर जाएगा तो पल्मोनरी वॉल ओपन होंगी, वो प्रेशर डायरेक्टली फिर ब्लड ट्रांसफर करेंगे पल्मोनरी ट्रंक को। बाकी कार्डियक एक्टिविटी सेम है जैसे यहाँ पे बोला। अभी हार्ट साउंड, तो सबसे पहला जो हार्ट साउंड जब सुनाई देता है दैट इज द क्लोजर ऑफ आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, मींस आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, ब्लड नीचे आया, ब्लड नीचे आने के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होने जाएगा तब ये जो माइट्रल वॉल्स और ट्राइकुस्पिड वॉल ओपन थी वो क्लोज हो गई। ठीक है, तो वो क्लोज एकदम फास्ट होती है, तो वो क्लोजिंग के कारण जो आवाज आता है हार्ट में दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। देन सेकंड हार्ट साउंड, एक aortic वॉल है। नेक्स्ट पल्मोनरी वॉल्स और aortic वॉल्स क्लोज होती है, मींस वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, तो डायस्टोल में जब जा रहा है, डायस्टोल में जाते वक्त फिर वो वॉल क्लोज होंगी। ऐसे कंडीशन में सेकंड हार्ट साउंड आता है, मींस फर्स्ट हार्ट साउंड इज बाय आर्टरियोवेंट्रिकुलर, सेकंड बाय सेमिनरल वॉल्स, थर्ड इट इज द रशिंग ऑफ ब्लड्स इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड कब आएगा, जैसे दोनों आर्टरियम्स they are the tank for they are the reservoir for the blood coming from the lungs and coming from the superior vena and inferior vena क्या वहां पे थे। अब जैसे मैंने बोला कि क्लोज होते वक्त आवाज हो रहा है, लेकिन जब माइट्रल वॉल और बाइकुस्पिड वॉल ओपन होती है वहां पे ब्लड पहले से स्टोर्ड है, रैपिड फीलिंग कर रहा है, तो कोई चीज एकदम से नीचे आ गई उसका अलग साउंड आता है, दैट इज द थर्ड हार्ट साउंड। मींस पहला आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंद होने के कारण, दूसरा सेमिनरल वॉल्स बंद होने के कारण, तीसरा जब आर्टरियोवेंट्रिकुलर क्लोज ओपन होती है वहां पे जो ब्लड होता है वो एकदम से नीचे आता है, दैट इज द थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, फोर्थ हार्ट साउंड इट इज द पैथोलॉजिकल साउंड। ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, अगर कुछ मस्कुलेशन में प्रॉब्लम है, मींस हाइपरट्रोफी हो गई, राइट, एट्रियल हाइपरट्रोफी है, ये बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर फोर्थ हार्ट साउंड भी आता है। ये नॉर्मली नहीं आता, जब मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ तीन ही साउंड होते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा जो हमें आवाज सुनाई जाती है दैट इज लब, जो साउंड आता है दैट इज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड। दीज आर द हार्ट साउंड। फर्स्ट दैट इज वो समराइज किया है मैंने, कौन से सेकंड में आएगा, कहाँ पे आएगा वगैरह वगैरह। दिस इज द टेबल रिलेटेड विद द हार्ट साउंड। नेक्स्ट वन कार्डियक मर्मर। अभी मैंने बताया कि नॉर्मली जो हार्ट साउंड आते हैं 1 2 3 दिस इज द नॉर्मल। उसको छोड़ के जो अबनॉर्मल यूजुअल हार्ट साउंड हमें सुनाई देंगे that is the cardiac murmur. Okay, cardiac murmur is the abnormal unusual heart sounds. It's also called as an abnormal sounds, that is cardiac beat. Cardiac murmur is led by the उसका अब ये कब हो सकता है, जैसे इलास्टिसिटी आउटा की लूज हो गई, ऐसे कंडीशन में वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो ऐसे कॉजेस भी है, दैट इज सिस्टमिक मर्मर, इनकॉम्पिटेंसी, स्टेनोसिस, एनीमिया, सेप्टल डिफेक्ट वगैरह वगैरह। डायस्टोलिक मर्मर सिर्फ अननॉर्मल साउंड मींस कार्डियक मर्मर। Arrhythmia refers to the irregular heartbeat, that is the difference of the disturbance of the rhythm of the heart. अब जैसे हार्ट बीट चालू है, जैसे मैंने बोला कि इट्स जस्ट फॉर द पॉइंट एट, अगर वो पंपिंग थोड़ी सी इरेगुलर हो गई, बीट मिस हो गई, बहुत बार आपने देखा होगा कि पल्स मिस हो जाती है, तो ये कुछ भी चेंजेस इससे रिलेटेड रहे दैट इज रिदम ऑफ द हार्ट से अगर कुछ चेंज हो गए तो दैट इज कॉल्ड एज एन arrhythmia. In arrhythmia heart beat may be fast, may be slow, there may be an extra beat, there is the miss beat. Okay, this is the pathological condition that is called as an arrhythmia. In cardiac output means this is just count जो वेंट्रिकल से बाहर निकलता है ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज एन कार्डियक आउटपुट। किस पोर्शन में वो बाहर निकल रहा है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल स्क्वीज होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 70 ml ब्लड पर मिनट बाहर निकलता है, दिस इज द कार्डियक आउटपुट। ये भी चेंज होता है अगर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जैसे हमने बताया कि पेसमेकर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके प्रेशर जो जनरेट हो रहा है 70 mm 60 mm फॉर द एवी अच्छे से जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये आउटपुट कम हो जाएगा। आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, तो मसल फटीग होगी, उसकी पल्स भी डाउन हो जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। जो काउंट होता है दैट इज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड विद हार्ट बीट आल्सो, हार्ट रेट आल्सो, so this is cardiac output. Then heart rate, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था, व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट, इट इज द 70 मिनट्स, इट्स रेंज फ्रॉम 80 to 60 to 80 मिनट्स। टैकीकार्डिया अगर ये बढ़ गया, कंडीशन इज कॉल्ड एज एन टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ा तो इट इंक्रीजेस अबव मोर देन 100 मिनट वगैरह होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन चाइल्डहुड में टैकीकार्डिया होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मली तो ही टैकीकार्डिया होता है,
प्रेगनेंसी में टैकीकार्डिया होता है वो नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल कंडीशन है। चाइल्डहुड में टैकीकार्डिया होना नॉर्मल है, एक्सरसाइज के बाद टैकीकार्डिया, पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ना नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में बनता है। इमोशनल कंडीशंस एंजाइटी में बनता है, जैसे एकदम से आपको कोई शॉक लग गया, किसी बात का एकदम से पता चल गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, ऐसे कंडीशन में जो हार्ट बीट बढ़ती है वो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आता है। मोस्टली दैट ड्यू टू द हार्मोन्स, दे हैविंग सेवरल हार्मोन्स रिलेटेड विद द हार्ट कंडीशन, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन में बहुत बार आपने देखा होगा कि जब फीवर आता है तो बढ़ता है, एनीमिया में बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसको एडिशनल हीमोग्लोबिन या न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है बॉडी टिश्यूज को, तो पंपिंग बढ़ा देता है ताकि वो जो उसकी जरूरत है वो फुलफिल हो जाए। हाइपरथायरॉयडिज्म, ये हार्मोनल है, थायरोक्सिन के कारण वो बढ़ता है। हाइपरसिक्रेशन ऑफ कैलेटोमाइन्स, कार्डियोमेगलोपैथी एंड डिसीज ऑफ द हार्ट वॉल्स में भी टैकीकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया 100 के ऊपर चला गया, दैट इज टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया 60 के नीचे आ गया तो दैट इज कॉल्ड एज एन ब्रेडिकार्डिया। फिजियोलॉजिकल कंडीशन नॉर्मली स्लीप में ये होता है, अगर हम सोए हैं तो हमारी पल्स जो है वो नॉर्मल से कम आती है, एथलीट्स में वो थोड़ा सा कम दिखता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में हाइपोथर्मिया में ब्रेडिकार्डिया होता है, तो देर तक अगर हम ठंडी में बैठे तो हमें ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्यू टू द हार्ट ड्यू टू द थायराइड हार्मोन्स, देन हार्ट अटैक, कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस, ऐसे कंडीशन में भी हमें ब्रेडिकार्डिया मिलता है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, दैट इज जो हम बीपी काउंट करते हैं, ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं, दैट इज द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम काउंट करते हैं। प्रेशर हर चीज के अलग होते हैं, दैट इज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, वेनस ब्लड प्रेशर, कैपिलरी ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू सिस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर बड़ा होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 121 एंड 120, एंड डायस्टोलिक वो कम होता है, दैट इज 80। ये अगेन ब्लड प्रेशर क्या है, तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंस द लैटरल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड कॉलम ऑफ द ब्लड टू द वॉल आर्टरीज। जो प्रेशर से वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल रहा है और वो आर्टरी के वॉल को हिट कर रहा है, उसको प्रेशर कहा जाता है। तो दैट इज द मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक प्लस 1/3। ये भी एक अलग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो सिस्टोल जब कंडीशन होती है तो इसमें प्रेशर बढ़ता है, दैट इज 120, जो हमने अभी बताया था कि 80 to 120 तक वो बढ़ता है, तो दैट इज 120 mm ऑफ Hg। यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, तो वो जो aorta में प्रेशर है दैट इज 80, वो नॉर्मल 80 होता है। अगेन हैविंग द वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू द एज। इलास्टिसिटी जो ये होती है वो थोड़ी सी कम ज्यादा होती है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर एज बढ़ गई तो 90, 140 भी हम नॉर्मली काउंट करते हैं। ऐसे कंडीशन में हम दवाई वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं करते। पल्स प्रेशर जो पल्स हमने देखी है दैट इज 40। अब ये दोनों का डिफरेंस होता है, दैट इज 120 minus 80 systolic blood pressure minus the diastolic blood pressure, that is pulse। मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ये अलग है, ये मोस्टली हम काउंट नहीं करते, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था। तो हम मोस्टली बीपी जो चेक करते हैं दैट इज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन पैथोलॉजिकल कंडीशंस एज द एज, जैसे मैंने बोला कि एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर वेरी हो सकता है, सेक्स के हिसाब से वेरी होता है। मोस्टली मेल में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल अप टू द मेनोपॉज। आफ्टर द मेनोपॉज मेल और फीमेल में ब्लड प्रेशर सेम होता है। बड़े बिल्ट में जो ओबेज होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इक्वल नॉर्मल है। डायurnal वेरिएशन मींस मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, अप टू द नून वो बढ़ते रहता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता है तो प्रेशर और अगेन कम हो जाता है। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है एज कम्पेयर। ड्यूरिंग स्लीप, सोते वक्त प्रेशर कम होता है, ब्रैडिकार्डिया हमने देखा है इसलिए वो होता है। इमोशनल कंडीशन में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, आफ्टर एक्सरसाइज भी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशंस बाजू में मैंने चार्ट में दिया है, अगेन हैविंग द डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन, नंबर ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन कुछ मैंने समराइज की है। वेनस प्रेशर, जैसे आर्टरिया में प्रेशर क्रिएट होता है वैसे सेम वेनस में भी होता है। प्रेशर वेन्स के वॉल्स में ये होता है, ये वेनस प्रेशर में आता है। उसके बाद पैथोलॉजिकल वेनिश, ये जो है चेंजिंग इन द स्टैंडिंग एंड द सुपाइन पोजीशन। अभी जैसे मैं नीचे खड़ा हूँ, वेनस प्रेशर ही हार्ट म्हणजे जब हार्ट पंप करता है तो उसमें खुद प्रेशर होता है, इसलिए वो बॉडी के टिश्यू तक जाता है। लेकिन जब उसे अपग्रेड अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है तो उसमें कुछ प्रेशर चाहिए, ऐसे कंडीशन में वेनस प्रेशर की जरूरत होती है। अगर मैं स्टैंडिंग और सुपाइन पोजीशन में हूँ, ये चेंज होता है वेनस प्रेशर।
अब वेन्स में वॉल्स होती है, वॉल्स होने के कारण वो हार्ट तक जाता है, मीन्स थोड़ा फार प्रेशर उसके में होता है, नहीं तो फिर जो वॉल्स है वो काम करती है। आर्टरी में वॉल्स नहीं होती, सिर्फ वेन्स में होती है, और ये वॉल्स के कारण वो अपर सेगमेंट में जाता है। बाकी भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट जाने के लिए। देन सिलियरी प्रेशर सबसे आखिरी में आता है, जो कैपिलरीज होती है उससे रिलेटेड ये रहता है, सिलियरी प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ब्लड कंटेंट्स द कैपिलरीज। ये भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम काउंट करते हैं विद द इंस्ट्रूमेंट्स। देन आर्टेरियल पल्स, जो हम पल्स काउंट करते हैं यहाँ पे, दिस इज द आर्टेरियल पल्स, रेडियल आर्टरी पे हम काउंट करते हैं, तो ये पेरिफेरल टू द हार्ट में हम पल्स काउंट करते हैं। अब ये किस किस जगह पे हम काउंट कर सकते हैं, इसका नंबर ऑफ ये मैंने ये किया है, मोस्टली हमको यही पता है रेडियल पल्स। हम बाकी जगह से भी पल्स काउंट कर सकते हैं, दैट इज टेम्पोरल, फेशियल, उसकी जगह कहाँ पे होती है वो भी मैंने मेंशन करके बताई है कि अल्नर पल्स हम कहाँ पे कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा वेरी होता है, मींस रेडियल पल्स अगर आप नीचे डोर्सल पेडिस पल्स के साथ उसको कंपेयर करोगे तो उसका नंबर थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर विद लोअर सेगमेंट, क्योंकि वो वहां तक जाने का उसका डिस्ट्रीब्यूशन होते जाता है। जैसे आवर्टा बड़ा है, छोटे छोटे ब्रांचेस निकल के, सिंपल है कि अगर मैं से पेड़ को ये कर रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ बड़ी इससे, और उसमें अगर ब्रांचेस होगी तो उसका प्रेशर जैसे से नीचे जाएगा तो कम होते जाएगा, तो थोड़ा सा वेरी होता है, बट इट इज नॉर्मल वन। देन लास्टली कोरोनरी सर्कुलेशन, जो हमने बोला कि सबसे पहली ब्रांच होती है कोरोनरी असेंडिंग आउटर की, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे दो कोरोनरी आर्टरीज होती है, लेफ्ट एंड राइट वन। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द फुल राइट वेंट्रिकल and the portion of the left ventricle. Left coronary artery supplies mainly the anterior lateral part of the left ventricle. There are many variations in the diameter of the coronary arteries. Basically ये जो है LAD-RC है, पूरे हार्ट को सप्लाई करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल को जो मोस्टली सप्लाई होते हैं दैट इज द LAD, ये कवर्ड करते हैं एंटायर हार्ट को, तो ये इंपॉर्टेंट होती है। अगेन यहाँ पे सब ब्रांचेस होते हैं, वहाँ पे कोरोनरी कोलैटरल सर्कुलेशन होता है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे कोरोनरी सर्कुलेशन के कारण एक आर्टरी ब्लॉक भी होगी तो वहाँ पे एडिशनल सप्लाई होता है, मींस ब्लॉक होना हो गया, इन्फार्क्ट हो गया तो हमें हार्ट अटैक आता है। अपन बहुत से कंडीशन में हार्ट अटैक आने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, ऐसे क्यों? क्योंकि वहां पे उस जगह पे कहीं और से सप्लाई आ रहा है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो आर्टरियल जो होते हैं वो ब्रांच कॉमन है, उसकी सब ब्रांचेस की बहुत जगह पे वेरिएशन मिलेगा। ऐसी कंडीशन में दे हैविंग द कोलैटरल सर्कुलेशंस, वेरिएशन इन द कोरोनरी आर्टरीज, जो यहाँ पे मैंने आगे बताया। दे हैविंग द ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम वेरीज होती है, सिर्फ दो आर्टरीज कॉमन रहती है, बाकी उसकी 4 और 5 ब्रांचेस है राइट और लेफ्ट की, इसकी सब ब्रांचेस और हमें डिफरेंट मिलेंगे। इन फंक्शंस ऑफ द कैपिलरीज, ये जो हमें बहुत बार हमें देखते हैं कि ब्लड एक्चुअल में कैसे ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसफर होता है, इट्स थ्रू द कैपिलरीज। जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो नॉर्मल ब्लड फ्लो है आर्टरीज, आर्टरीज से ब्रांचेस, ब्रांचेस से कैपिलरीज, कैपिलरीज से देन वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में होता है। दिस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। वो ऐसा नहीं कि बॉडी में चला गया, बॉडी से फिर बाहर निकला, ये कंटिन्यूअस रहते हैं। सिर्फ रास्ते में जो जो स्ट्रक्चर आते जाता है उसको वो न्यूट्रिशन बांटते जाता है, उसका न्यूट्रिशन खत्म हो गया, वेन्स में ड्रेन होगा, वेन से वो फिर से हार्ट में जाएगा। हैविंग 3 types of distribution, that is diffusion, filtration and pinocytis. First one, diffusion. Diffusion means just exchange of gases, water, glucose, sodium, urea and many other substances. These substances diffuse through intercellular clefts present in the endothelial walls. दोनों की walls पास में आती है तो वो directly transfer होते हैं, diffused होते हैं, occur between the concentration gradients across the capillary walls. तो walls के pressures होते हैं, वहां से वो direct diffusion होते हैं। Filtration, site of the filtration of the substance through the capillary membranes varies. Different organs, skeletal muscles, cardiac muscles, kidney, intestine, filters occurs through the slight pores present in the capillary of the endothelium. Means एक तो डिफ्यूजन से होगा, कुछ चीजें डिफ्यूजन से नहीं होती तो वहां पे फिल्ट्रेशन होता है, तो उसके मेसोथेलियम में ही वो हिस्टोलॉजिकली प्रेजेंट रहते हैं कि हम क्या डिफ्यूज कर सकते हैं, वो डिफ्यूज क्या फिल्ट्रेट कर सकते हैं, तो फिल्ट्रेशन मेथड से भी वो ट्रांसफर होता है। Last one, the pinocytosis. The larger molecule are transported across the capillary of endometrium into the form of the vesicles. Large molecules are packed as the vesicles in the capillary of the endothelium. These vesicles are transposed across the endothelium membrane, the process of pinocytes. ठीक है, एक endothelial membrane से दूसरे endothelial membrane तो process से
प्रोसेस फॉर्म करता है और प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन पिनोसाइटोसिस। तो मेन जो होता है वो 3 हिस्से होता है, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और पिनोसाइटोसिस। दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन। वी हैव 3 minutes फॉर द डिस्कशन। आई थिंक ऑल टॉपिक्स जो रिलेटेड है मैंने कवर किए हैं। जो क्लिनिकल कंडीशंस है, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी है, क्लिनिकल कंडीशन हार्ट अटैक, इट इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियम जो ये होता है कि ब्लड सप्लाई होता है कि वहां पे क्लॉट हो जाता है, क्लॉट होने के बाद वो आगे ब्लड सप्लाई नहीं दे पाता, इसलिए वो इन्फार्क्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक उसको हम बोलते हैं। इस्चेमिया, मायोकार्डियल इस्चेमिया, इट इज जस्ट पेन ऑफ द हार्ट, कि कहाँ पे पार्शियल ब्लॉकेज हो गए, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे पेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इस्चेमिया। इस्चेमिया जस्ट रिलेटेड विद पेन। ये क्लिनिकल कंडीशंस है दैट इज रिलेटेड विद हार्ट। जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, वो हमने पूरे इसमें देखे। हम अभी कुछ इससे रिलेटेड होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये जो टिपिकल आपने हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पता है, तो ये जो टिपिकल जो ब्लड मतलब जो हार्ट डिजीज जिसे कहते हैं, उसमें एक्चुअली क्या होता है? सर, हार्ट डिसीजेस बेसिकली बहुत तरीके के होते हैं। जैसे मैंने बोला कि वॉल्स अच्छे से काम नहीं कर रही, जैसे कार्डियक साइकिल है, वॉल को क्लोज होना है लेकिन वो क्लोज नहीं हो रही। तो ऐसे कंडीशन में कैसे होगा कि आर्टरियम का खुद का प्रेशर नहीं है, वेंट्रिकल को खुद का प्रेशर है। अब वो प्रेशर के कारण अओर्टा की तरफ जा रही है, तो वही प्रेशर से ब्लड वापस आर्टरियम में भी जाएगा, रिवर्स होगा। वैसे कंडीशन में उसको प्रेशर की आदत नहीं है, तो वो चेम्बर बड़ा हो जाएगा। दैट इज द हाइपरट्रोफाइड ऑफ एनी चेम्बर। मींस अब वो बड़ा हो गया, ऐसा है। अब ये दरवाजे है, ये वॉल्स है, ये चिपकते हैं। ऊपर का वॉल बड़ा हो गया तो ये जो पोर्शन है ये भी दूर दूर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में दोनों चेम्बर का प्रेशर बहुत टाइम सेम रहेगा, तो दोनों चेम्बर भी बढ़ सकते हैं। हार्ट डिसीजेस में दे हैविंग नंबर ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस। ठीक है, हार्ट वॉल्स प्रॉपर नहीं होंगे, जैसे मैंने बोला कि दिल में छेद है वो होगा। उसके बाद चेम्बर्स की साइज उसकी जो है वो बढ़ जाएंगी। अदर साइड टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे पेसमेकर, हम इम्पल्स जनरेट नहीं होते, इस कारण एडिशनल पेसमेकर बैठाते हैं। वो लेफ्ट सेप क्लेवियन में हम उसको इंसर्ट करते हैं, वहां से ये प्रोब रहता है, वो ऐसे नोड तक जाता है, वहां से फिर वो इम्पल्स जनरेट करता है आर्टिफिशियली। तो ये भी क्लिनिकल कंडीशन होती है। तो हार्ट डिसीजेस ब्रॉड कंसेप्ट है, कोई भी रिलेटेड विद हार्ट रहा, मींस ये हो गया साइनोसाइटिस हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, मींस डायलेटेशन हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि वेंट्रिकल से 120 से प्रेशर पे वो अओर्टा में गया, अओर्टा की कैपेसिटी 80 की है, वो इलास्टिसिटी के कारण वो बड़ा हो गया। तो वो बेसिकली आर्टरी की 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स से आर्टरी बनती है। तो किसी एक लेयर में अगर रप्चर हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, रप्चर हो गया, वैसे कंडीशन में वो आर्टरी के वॉल्स के भीतर वो ब्लड चला जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एन एन्यूरिज्म। तो वो भी होता है। फैलोट्स टेट्रोलॉजी करके है, यानी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ये दिखते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस को उन्होंने कंपाइल भी किया है अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से, कि हाइपोट्रोफाइड राइट की दिखी, एन्यूरिज्म दिखा, ये दिखा, माइट्रल वॉल ये दिखा। तो ऐसे कंडीशन हार्ट डिसीज में आते हैं। स्टेनोसिस आता है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाए। मरमर, जो हमने बोला कि कार्डियक मरमर, कि वो क्लोज होने के बाद मरमर आता है, लेकिन अगर क्लोज नहीं हुआ तो ये फोर्सफुली ब्लड ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाने का ब्लड दिस साउंड भी हमें सुनाई देगा, तो ये भी मरमर होगा। तो हर क्लिनिकल कंडीशन में मरमर भी अलग आता है, हार्ट साउंड भी अलग आता है। दे हैविंग नंबर ऑफ कार्डियक डिसीजेस, दे आर ऑल रिलेटेड विद वन अनदर वन। जैसे अगर बहुत देर तक जो ये होता है फोरामिन ओवैली अगर परसिस्टेंटली ओपन रहा, ये कंडीशंस मोस्ट ऑफ द टाइम बचपन में समझ में आती है, लेकिन अगर बचपन में नहीं समझ में आ गई, ठीक है, तो अब प्रेशर यहाँ से वहां पे जाना है, आर्टरीज से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाना है। तो ऐसे कंडीशन में भी दोनों आर्टरियम की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर को इक्वली डिवाइड, हर चेम्बर का प्रेशर अलग है, और हर चेम्बर की कम्युनिकेशन अगर एक दूसरे के साथ नॉर्मल से ज्यादा टाइम तक रहेगी तो बढ़ जाएंगी, उसकी साइज बढ़ जाएंगी। उसके एक की भी साइज बढ़ गई वो दूसरे को इम्पैक्ट देगा। एक वॉल बढ़ गई, एक
दोनों वॉल की साइज का अंतर, वॉल जो क्लोज हो रही है वो 100% वहां पे एम्पल होगा, हर जगह पे वो थोड़ा थोड़ा ये रिस्पॉन्स देता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे अभी सांस फूल रही है, हम जैसे मैंने बोला कि ओबेस पर्सन में ये होता है कि बीपी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो मायोकार्डियल वॉल्स है, ठीक है, या हार्ट के आजू बाजू में पेरिकार्डियल स्पेस में फैट ज्यादा रहता है, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हार्ट की पंपिंग हो रही है कंटिन्यूअसली 0.8 सेकंड में पूरा हार्ट पंप हो रहा है, पर अगर उसके आजू बाजू में कुछ चीजें आ गई तो उसकी ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी, ठीक है, तो ये कम हो रही है, हमें एक्टिविटी करने के लिए अब मुझे पर्टिकुलर ऑर्गन को मुझे उतनी ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, तो हार्ट को उसको वो प्रोवाइड करनी ही है। अब वो प्रोवाइड करने के लिए हार्ट एक तो नॉर्मली काउंट, नॉर्मल प्रेशर में काउंट होगा, अगर वो नॉर्मल में नहीं काउंट हो रहा है, नॉर्मल में उसकी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये एक्टिविटी बढ़ाएगा, ठीक है, इसलिए जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा चलने के बाद हमें सांस फूल गई, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक्टिविटी कहीं पे तो भी थोड़ा सा ये हो रहा है, तो एक्सरसाइज में वगैरह तो ये नॉर्मली बढ़ता है, क्योंकि हम एडिशनल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी बॉडी को नॉर्मली जरूरत नहीं है, हम उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसकी एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सालों तक मैंने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं की, हार्ट को ये नहीं है, आदत नहीं रही एक्स्ट्रा पंपिंग की, ऐसे कंडीशन में अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एकदम से स्टार्ट कर रहा हूँ, विगरसली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हार्ट को आदत नहीं है पंपिंग की, तो ऐसे कंडीशन में भी बहुत बार मायोकार्डियल इंफार्क्शन आता है, क्योंकि इसको आदत नहीं रही, वो इंफार्क्ट हो गया, ब्लड प्रेशर कहीं पे ये हो जाता है, तो और वहां पे आर्थेरोस्क्लेरोसिस करके क्लिनिकल कंडीशन है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस दैट इज losing of the elasticity of the vessels related with the heart, arteriosclerosis means जो फैट होता है वो वॉल्स में, आर्टरी के वॉल्स में चिपकते रहता है, जैसे हमने बोला कि जो ग्राफी में दिखता है ब्लॉकेजेस, दैट इज रिलेटेड विद द आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, तो ये चिपकते रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन कभी आते हैं कि दोनों वॉल्स एकदम से चिपक गए, तो आगे की आर्टरी है वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंजियोग्राफी होती है, ग्राफी में जो ब्लॉक है, अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉक है तो मैंने एक प्रोब डाला, प्रोब डालने के बाद यहाँ पे बलून से वो ब्लॉकेज दूर करता हूँ, वहां पे स्टेन डाल देता हूँ ताकि वो ब्लॉक फिर से एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए, दिस इज द एंजियोप्लास्टी। ग्राफी में हम सिर्फ फोर्स कर रहे हैं डाय को, पंपिंग चालू है हार्ट का, और वो डाय के कारण वो पिक्चर सामने देखेंगे ब्लैक कलर के ये दिखते हैं, शैडोज दिखते हैं ग्राफी में, वो नॉर्मली पंपिंग है, ग्राफी में डाय पुश करने के बाद कहाँ से ब्लड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, वो हमें ग्राफी में दिख जाते हैं। प्लास्टी में हम स्टेन डालते हैं, बलून डाल के उसको फुला देते हैं, अगर एक हाथ दूसरी जगह पे छोटा सा ब्लॉक रहा तो मोस्टली प्लास्टिक रखते हैं, अगर उससे भी नहीं हो रहा, ब्लॉक बहुत ज्यादा है, अब 95 है, बड़ी आर्टरी है, हम बाईपास करते हैं, तो बाईपास में कैसे है कि ये नॉर्मल रूट है, यहाँ पे ब्लॉक है, तो यहाँ से दूसरी आर्टरी हम आर्टिफिशियली जोड़ देंगे, जैसे इसको वो बाईपास कर देंगे, तो यहाँ पे आगे ब्लड नॉर्मली अनदर आर्टरी से फ्लोज होगा। ऐसे कंडीशन में दूसरी जगह से वेन निकालते हैं, मोस्टली जो बेड सिफेनस वेन है पैरों की, वहां से वो पैच निकालते हैं, हार्ट में इम्प्लांट करते हैं। अगर आपने बाईपास के पेशेंट देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा उनके पैर में स्टिचेस होते हैं, तो वहां से वो ग्राफ्ट करके निकालते हैं, हार्ट में ये करते हैं, तो ये एडिशनली देते हैं। तो उसके बाद भी हमें प्रेशर भी काउंट करना पड़ता है, 2D इको में ये समझ में आता है कि प्रेशर कितना कौन से चेम्बर में है। हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी से वेव्स समझ में आती है कि नॉर्मली चल रही है क्या, जैसे हमने बोला कि 0.8 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद साउंड वेव्स है, तो 0.8 सेकंड में 0.8 सेकंड में भी 1.1 सेकंड सिस्टोलिक के लिए है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वेव डिनोट करता है, बाकी कॉन्ट्रैक्शन जो सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वो क्यूआरएसटी वेव्स डिनोट करते हैं, उसका जो ड्यूरेशन है वो हार्ट बीट से लेके रहता है, मींस एक कार्डियक साइकिल रिलेटेड विद द हार्ट बीट, तो वो अगर टैकीकार्डिया रहा तो हार्ट बीट और ईसीजी एकदम पास पास आएंगे, तो ये भी ईसीजी से भी हम देख सकते हैं, तो ये ऑल क्लिनिकल कंडीशंस है, इसको हम हार्ट डिसीज में कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। अभी प्रश्न तो और भी हैं पर समय निकल गया, तो एक्चुअली और मौका ढूंढ टॉपिक बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से फास्ट लिया, मोस्ट ऑफ द हाँ एनाटॉमिकल पोर्शन स्किप करते गया जो काम की चीज है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन थोड़ा सा कार्डियक साइकिल अगर समझ में आ गई, इसलिए वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया ताकि वो एग्जैक्ट साइकिल कैसे होती है वो देखे, नहीं तो बाकी थोड़ा सा, क्योंकि ये विद इन 1.5 घंटा ये पूरा मीन्स सिर्फ फिजियोलॉजी अगर कार्डियक की लेते गए
तो अरिथमिया को ही एक चैप्टर लग जाएगा, कार्डियक साइकिल को 1 घंटा लग जाएगा, ऐसा भी होता है। इसलिए ठीक अगर है। आज अगर ये मैं पीपीटी तो शेयर कर देता हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ क्वेश्चन रहे तो